Hello students, this is 8th lecture on topic magnetism या magnetic materials. In last two lectures, we discuss about diamagnetic substance, paramagnetic substance and their behavior when kept in external magnetic field. Now in today's lecture, let us discuss about the ferromagnetic substance. अभी जो बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है सेम बिहेवियर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पजेस बट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, थोड़ा ग्रेटर एक्सटेंट पर रहेगा या थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पे रहेगा. इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल मोर इन नंबर and that is why by default they possess non-zero dipole moment. So when you put it in a magnetic field, they have a strong tendency to move from weaker part of magnetic field to stronger part of the magnetic field, like paramagnetic substance. इनको weak tendency था, इनको strong tendency है. Paramagnetic substances demagnetize हो जाते हैं. Ferromagnetic substance can retain the magnetism, demagnetize नहीं. और कुछ additional features है वो देखते हैं. Substance which develop strong magnetization in the direction of magnetizing field are called ferromagnetic substance. मतलब ये क्लासरूम में के जो स्कॉलर स्टूडेंट है वो ग्रुप है. These are the scholar students from the group. मतलब ये ऑलरेडी पढ़ने के मूड में ही बैठते हैं और ये लर्निंग प्रोसेस में असिस्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और परमानेंटली नॉलेज कन्वे भी करते हैं, राइट. Such substances are strongly attracted by the magnets and tend to move from weaker part of the field to stronger part quickly. Para का slowly था, ये quickly है. Substances मैंने already आपको बोला है, iron, nickel, cobalt, gadolinium, ये substances है, ferrite, ये substances है. ये substances normally solid state और liquid state में ये available है, gaseous state में available नहीं है. And by default they possess non-zero dipole moment. Features क्या है? इसके फीचर्स भी वही सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में डायमैग्नेटिक और फिर पैरामैग्नेटिक के थे. तो मैंने ऑलरेडी बोला आपको तीनों को 3 कॉलम में लिख के ही पढ़ने का, और तीनों का पहला, तीनों का दूसरा, तीनों का तीसरा ऐसे पढ़ने का, तो कंपैरिजन भी हो जाता है. अभी मैं ये पढ़ते समय इसको पैरा के साथ कंपेयर करेगा. In the absence of external magnetic field, the net magnetic moment of ferromagnetic substance is non-zero. क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो यहाँ इनका बाय डिफॉल्ट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट रहता है, पैरा का नहीं रहता है ड्यू टू रैंडम मोशन. When ferromagnetic substance is kept in external magnetic field, they develop strong magnetization in the direction of magnetizing field. मतलब स्कॉलर स्टूडेंट जैसे क्लासरूम में टीचिंग प्रोसेस को स्ट्रांगली असिस्ट करते हैं वैसे ही. The rod made up of ferromagnetic substance, when kept in uniform magnetic field, it rotate and come to rest parallel to the direction of magnetic field. Parallel to the direction of magnetic field. पैरा का भी सेम था लेकिन पैरा का स्लोली था, ये क्विकली होता है, इतना ही फर्क है. अगला, the rod made up of ferromagnetic substance, when kept in non-uniform magnetic field, it immediately moves from weaker part to the stronger part. Para का था moves from weaker to stronger slowly, ये था greatly या speedily या rapidly, ऐसा. वही property sensitive level पे. The rod made up of ferromagnetic substance, when placed in a magnetic field, then more magnetic lines of force it prefer to pass through it content. जैसे मैंने बोला स्कॉलर स्टूडेंट स्ट्रांगली असिस्ट करते हैं लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस को, वैसे ये भी है. ये मटेरियल जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दे permit the magnetic field to set. That is why they permit maximum magnetic lines of force to pass through their content. अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वॉच ग्लास में लोगे, लिक्विड वॉच ग्लास में लोगे और इसको N और S पोल के ऊपर रखोगे, राइट, तो जो प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक का था वही प्रॉपर्टीज इनके लिए रहेगा, लेकिन हायर लेवल पे या ग्रेटर एक्सटेंट पे रहेगा. मतलब अगर पोल डिसिमिलर पोल में सेपरेशन कम है
वॉच ग्लास में आपने लिक्विड या फेरोमैग्नेटिक का रखा, तो मिडल में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहता है, तो वहाँ एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला रहेगा, पैरा में थोड़ा कम हाइट वाला रहता है। पोल्स को थोड़ा सेपरेट करो तो मैग्नेटिक फील्ड मिडल में वीक हो जाता है, तो पैरा के लिए थोड़ा एलिवेशन की डिप्रेशन आ जाता है, या डिप्रेशन थोड़ा ग्रेटर एक्सटेंट पे आता है। कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने उधर दिए थे देखो मैथमेटिक्स में, ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी के साथ में ऐसे डॉट देके, तो ये पॉइंट जो है याद करना बहुत आसान होता है। इसका ससेप्टिबिलिटी कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ज़्यादा भी रहेगा कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का कैसे था, सॉरी डाई का कैसे था, स्मॉल नेगेटिव था, पैरा का स्मॉल पॉजिटिव था, इसका लार्ज पॉजिटिव। ससेप्टिबिलिटी I/H। ससेप्टिबिलिटी पैरा डायमैग्नेटिक का क्या था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, पैरा का टेम्परेचर डिपेंडेंट था, इसका भी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट एक सर्टेन टेम्परेचर के अबव रहता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोला जाता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी डाई का कैसे था, वेरी स्मॉल था, लेस देन 1 था, इसका पैरा का ग्रेटर देन 1 था, बट जस्ट ग्रेटर देन 1 था, इसका मच ग्रेटर देन 1 है। डाई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पैरा सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट करता है। ये फेरोमैग्नेटिक का फिजिकल स्टेट मोस्टली क्या रहेगा, सॉलिड से रहेगा, लिक्विड भी बहुत रेयर है, राइट ओके। और इसका ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन कैसा, अबव द टेम्परेचर, अबव द क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर। What is Curie temperature? This is the temperature at which ferromagnetic substance is converted to paramagnetic substances. ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और हम लोगों ने उधर लिखा था कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्यूरी लॉ था। फेरोमैग्नेटिक का भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद ससेप्टिबिलिटी बिकम्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्यूरी वेस लॉ है, दिस इज अ क्यूरी वेस लॉ। ये हम लोग मैथमेटिकल पार्ट वापस आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही प्रिपेयर करो यहाँ पे, ठीक है। अभी इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म हमें डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी का मतलब क्या है, देखो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द एटम्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल द एटम्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट्स। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स लो, group of atoms whose dipole moments are aligned in one direction, ऐसे एक ग्रुप रहेगा, ऐसे एक रीजन रहेगा, उस रीजन को बोला जाता है डोमेन। तो ये देखो एक डोमेन है, इन दिस रीजन हाउ मेनी फेरोमैग्नेटिक एटम्स आर प्रेजेंट, देयर डाइपोल मोमेंट्स वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है, ये चौथा डोमेन है। सच मेनी डोमेन्स आर अवेलेबल इन ईच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैंने डायग्राम का लुक के लिए 4 ही दिखाया है। ये देखो स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन विच ऑल द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये सिंगल ओपिनियन के लोग हैं, तो एक ही ग्रुप में बिलोंग करते, उस ग्रुप को क्या बोला जाएगा, डोमेन। ईच डोमेन हैज अ रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मानो 50 एटम्स है जिनका ऑर्बिटल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो उनका एक ग्रुप बना और ग्रुप को एक ही डायरेक्शन दो, ये ग्रुप हेड हो गया, इसको डोमेन बोला जाता है। ओके, तो जब आप ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करोगे, तो इसका लुक ऐसे रहेगा, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं पढ़ता हूँ, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डिफरेंट डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड
so that magnetic field of the domain cancel each other and material does not show any magnetic property as shown in figure. मतलब ये ferromagnetic substance when it is not introduced in a external magnetic field, इसके dipole moment cancel हो जाते हैं and in the absence of external magnetic field, it does not show any magnetic behavior. हाँ, अगर आप ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट इज केप्ट इनटू द वीक मैग्नेटिक फील्ड में, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जो डोमेन्स है जिनका डोमेन वेक्टर्स आर अलाइन इन अ नियरली सेम डायरेक्शन होंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा तो जो डोमेन्स है जिनके डाइपोल मोमेंट वेक्टर आर अलाइन इन अ नियरली सेम डायरेक्शन होंगे, उनका ग्रुप तैयार हो जाएगा। एक ग्रुप तैयार होने की वजह से वो डोमेन का साइज बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। तो इस डायग्राम में देखो, जैसे वर्टिकली अपवर्ड डोमेन्स थे बहुत सारे, जिनका डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड था या नियरली वर्टिकली अपवर्ड था, वो एक जगह ग्रुप हो गए, मतलब इनका एक ग्रुप तैयार हो गया, तो एक पर्टिकुलर डोमेन का ग्रोथ हो गया यहाँ पे। बाकी डोमेन्स कैसे हो गए, डोमिनेट हो गए, ये टेम्पररी चेंज है। हाँ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये जो डोमेन्स है रैंडमली ओरिएंटेड, इनका भी फ्लिपिंग हो जाएगा एंड दे ऑल गेट अलाइन इन द वन डायरेक्शन। तो अभी सभी जो है अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर अंडर द सेम ओपिनियन, राइट? ओके, तो ऐसे ये तीन इफेक्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the absence of weak magnetic field, in the absence of strong magnetic field. ये तीनों पार्ट कर लो, एक ये और ये एक। Now what is the effect of temperature on ferromagnetic substance? Ferromagnetism is maximum at absolute zero temperature, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना थर्मल एजिटेशंस कम, जितना थर्मल एजिटेशंस कम उतना डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स एक डायरेक्शन में विद द टाइम अलाइन दिखेंगे, डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। दैट इज वाई फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर जो है ये अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे मैक्सिमम रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होता है एंड इट ड्रॉप्स टू द जीरो एट ए टेम्परेचर कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर रोटेट होंगे, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब होते जाएगा और एक टेम्परेचर आएगा where alignment get completely disturbed and ferromagnetic substance is converted to the paramagnetic substances. So the temperature at which ferromagnetic behavior is what disappear, that temperature is called as Curie temperature, and above Curie temperature that substance shows paramagnetic behavior. That is here जो मैंने बोला अभी, ये यहाँ से आप पढ़ लो। Temperature at which the domain structure is destroyed and the ferromagnetic substance loses its magnetism, मतलब it becomes paramagnetic above Curie temperature. Above Curie temperature ferromagnetic substance is converted to paramagnetic substances. ये आप प्रिपेयर करो, ये कुछ टेम्परेचर से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल पर इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। कोबाल्ट के लिए, आयरन के लिए, निकेल के लिए, गैडोनिल, ये तीन टेम्परेचर है केल्विन। कैसे याद रखना है ये आपका कंसर्न है, इसके लिए आपको रिपीटेडली पढ़ना पड़ता है। ये कुछ ग्राफ मैंने दिखाया, सिलेबस में नहीं लेकिन समझने के लिए। देखो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस ग्राफ में देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी निगेटिव रहता है लेकिन कांस्टेंट रहता है। ये जो ग्राफ है ना ये ससेप्टिबिलिटी देखो, टेम्परेचर बढ़ाओ, ससेप्टिबिलिटी मतलब वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा नहीं लेकिन निगेटिव वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। पैरामैग्नेटिक के लिए देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहता है लेकिन डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीज होना डिस्टर्बेंस इंक्रीज करता है और ससेप्टिबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। और फेरो के लिए देखो, टेम्परेचर बढ़ा, ससेप्टिबिलिटी पहले क्या रहेगा, धीरे धीरे कम होएगा और सडनली कम होने लगेगा। ये जो टेम्परेचर है ये क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। Now, in the next lecture, we will continue the next topic of this chapter. Thank you.